Good morning, dear students. How are you, beta? Fine? Did you enjoy the festivals? Wow, great. Beta, prayer is man's greatest part. So, we should pray to God. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Lord, I give you my heart. I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Beta, open lesson 9 of your book. In previous video, we did exercise 9.3 given on page number 113. Solve part question 3. Take a challenge. Snapshot given on page number 115. In today's video, we will do Maths Lab, Everyday Maths, and Think Beyond given on page number 116. And we will also revise some part of lesson 9. Beta, first of all, we will do Maths Lab activity given on page number 116. Beta, I have taken these 4 strips of different colors. All these strips are of equal size. First strip is of pink color. Now I have taken the second strip of yellow color and divided it into 2 equal parts. The fraction of each part is 1/2. It can also be written as 1/2. Now I have taken green color strip and divided this strip into 3 equal parts. The fraction of one part is 1/3. It can also be written as 1/3. This blue strip is divided into 4 equal parts. The fraction of this is 1/4 and it can be written as 1/4. Beta, you can also prepare this fraction strips and can hang it on your room wall. Now beta, we will revise everyday maths and think beyond questions given on page number 116. Beta, this is everyday maths question given on page number 116 of your book. Now read this question with me, beta. I work for 12 hours and sleep for 8 hours. What fraction of the day do I work and sleep? बेटे इसमें क्या है क्वेश्चन में? मैं 12 आवर्स के लिए वर्क करती हूँ और 8 आवर्स के लिए स्लीप करती हूँ. आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ द डे. मैं कितनी देर के लिए वर्क करती हूँ और स्लीप करती हूँ, इनकी क्या फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है ना आपको. तो आप बेटा, आपको मालूम है वन डे में कितनी आवर्स होते हैं? वन डे हैज 24 आवर्स and you have to find out the fraction of the work.
फ्रैक्शन ऑफ द वर्क फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेते हैं ना, तो न्यूमरेटर में क्या लेंगे, जितनी देर आप वर्क करते हैं उसको आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। 12 यू विल राइट 12 एज न्यूमरेटर, और टोटल आवर्स कितने होते हैं वन डे में, 24 आवर्स, इसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो द फ्रैक्शन विल बी 12/24। अब 12/24 बेटे आपको मालूम है ना, दोनों नंबर 12 के टेबल में आते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, 12 को भी 12 से डिवाइड करेंगे और 24 को भी 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब बेटा 12 के टेबल में 12 कहां पर आता है, 12 1 जा 12, ओके, और 12 के टेबल में 24, 12 2 जा 24, you will write here 2, so the fraction will be 1/2, fraction for the work will be 1/2. अब आपको now बेटा you have to find out the fraction of the sleep. sleep की fraction find out करने के लिए आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जितनी देर मैं सोती हूँ 8 लिखेंगे ना, 8, and denominator will be total hours, 24 hours होते हैं ना वन डे में, 24, 8/24 is the fraction. अब 8 और 24 किसके टेबल में आते हैं, दोनों नंबर 8 के टेबल में आते हैं ना, so you will divide 8 with 8 and 24 with 8. अब बेटे 8 के टेबल में 8 कहां पर आता है, 1 पर, शाबाश, और 8 के टेबल में 24 कहां पर आते हैं बेटे, 3 पर, very good. So the fraction of the sleep will be 1/3. Fraction of the work is 1/2 and fraction of the sleep is 1/3. Is it clear? Now beta, this is think beyond question given on page number 160. Read this question with me. Riya has 6 dresses. रिया के पास कितनी ड्रेसेस है बेटे, 6 ड्रेसेस. हर मदर वॉशेस 4 ड्रेसेस ऑन संडे. उसकी मम्मा संडे को कितनी ड्रेसेस होती है उसकी, 4 ड्रेसेस. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रेसेस वॉश्ड and what is left unwashed. आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है वॉश ड्रेसेस की भी और अनवॉश ड्रेसेस की भी. जो लेफ्ट अनवॉश ड्रेसेस हैं उनकी फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करनी है. अब बेटा फ्रैक्शन ऑफ द ड्रेसेस वॉश कैसे निकालेंगे, कितनी वॉश करती है मम्मा उनकी संडे को, 4 ड्रेसेस वॉश करती है, 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा और टोटल ड्रेसेस कितनी है, 6. So the fraction will be 4/6. Okay. अब 4/6 जो है, 4 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं बेटे, 2 के टेबल में आते ना, तो आप क्या करेंगे, 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी बेटे, 4 के 2 के टेबल में 4 कहां पर आता है, 2 पर, और 2 के टेबल में 6 कहां पर आता है, 3 पर. So the fraction will be 2/3. ये फ्रैक्शन किसकी आई है, फ्रैक्शन फॉर द ड्रेसेस वॉश्ड. ठीक है, 2/3. अब हम अनवॉश ड्रेसेस निकालते हैं. अनवॉश ड्रेसेस क्या करेंगे आप, टोटल ड्रेसेस में से वॉश ड्रेसेस को माइनस कर देंगे. 6 - 4, 6 - 4 is 2. अब हम अनवॉश ड्रेसेस की फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे. फ्रैक्शन ऑफ द अनवॉश ड्रेसेस. अनवॉश ड्रेसेस कितनी है बेटे, 2 है ना, 2 न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड टोटल ड्रेसेस आर 6 को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे. 2/6 विल बी द फ्रैक्शन. अब ये 2/6 किसके टेबल में आता है, 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, तो आप दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे.
अब बेटे बताइए 2 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है? 1 पर, शाबाश। और 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है? 3 पर, वेरी गुड। सो द फ्रैक्शन विल बी 1/3। ये फ्रैक्शन किसकी आई है? फ्रैक्शन ऑफ द अनवॉश्ड ड्रेसेस। ओके बेटा, now we will revise some part of fraction. Here, first question is write the colored parts as a fraction, writing both as a number and as number name. Also write numerator and डिनोमिनेटर। बेटे आपको कलर्ड पार्ट्स की फ्रैक्शन लिखनी है और फिर उसका नंबर नेम लिखना है और आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी लिखना है। जैसे इसमें 5 पार्ट्स कलर है ना एंड टोटल पार्ट्स 6 हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 5/6। 5/6 का नंबर नेम क्या होगा बेटे? 5, 6। और न्यूमरेटर क्या होता है? जो ऊपर का नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है ना। 5 इज द न्यूमरेटर एंड 6 इज द डिनोमिनेटर। इन नेक्स्ट पार्ट द फ्रैक्शन इज 1 part is colored and total parts are 2. So the fraction is 1/2. The number name of 1/2 is 1/2. Here the numerator is 1 and the denominator is 2. Now beta, we will read fractions on the number lines. अब बेटे ये नंबर लाइन देख रहे हैं ना, ये नंबर लाइन 0 से लेकर 1 तक है ना, ठीक है। और कितने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया वैसे? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आप फर्स्ट पार्ट कैसे लिखेंगे? 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट और फर्स्ट पार्ट यहां पर कवर हो रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2, क्योंकि टोटल पार्ट्स 2 है ना, सो यू विल राइट इट एज 1/2। नेक्स्ट इज 2/2, 2/2 मीन्स 1। अब नेक्स्ट नंबर लाइन के पार्ट्स कितने हैं बेटे? 1, 2, 3, 4। टोटल पार्ट्स आर 4। अब फर्स्ट पार्ट को आप कैसे लिखेंगे? 1/4। सेकेंड पार्ट आपका यहां पर कवर हो रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? इसकी फ्रैक्शन 2/4। 2/4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2, क्योंकि 2 और 4 दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 1 पर आता है और 4 2 के टेबल में 2 पर आता है। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1/2। अब बेटे यहां तक कितने पार्ट्स कवर हो रहे हैं? 1, 2, 3। इट कैन बी रिटन एज 3/4। एंड लास्ट पार्ट इज, यहां तक 4 पार्ट्स कवर हो रहे हैं, 4/4। 4/4 कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज 1। इसको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। नाउ नेक्स्ट नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। अब फर्स्ट पार्ट यहां पर कवर हो रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/8। सेकेंड पार्ट को कैसे लिखेंगे? 2/8। 2/8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/4, क्योंकि 2 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 1 पर आता है और 8 2 के टेबल में 4 पर आता है। सो इट कैन बी रिटन एज 1/4। अब यहां पर 3 पार्ट्स कवर हो रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे? 3/8। नेक्स्ट 4/8। 4/8 को दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। पहले 4 2 के टेबल में 2 पर आता है और 8 2 के टेबल में 4 पर, 2/4। नाउ अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 1 पर आता है और 4 2 के टेबल में 2 पर। सो 4/8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2। अब बेटे यहां तक 5 पार्ट्स कवर हो रहे हैं,
So you will write it as 5/8. अब यहाँ तक कितने पार्ट्स कवर हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you will write it as 6/8. और 6 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना. 6 2 के टेबल में 3 पर आता है और 8 2 के टेबल में 4 पर. You can write it as 3/4. अब यहाँ पर 7 पार्ट्स कवर हो रहे हैं. You will write it as 7/8. And the last part is 8/8. 8/8 can also be written as 1. ओके, पहले आपने 2 से डिवाइड किया. 8 2 के टेबल में 4 पर आता है, 4/4 हो गया. फिर से दोबारा से 2 से किया. 4 2 के टेबल में 2 पर आता है तो 2/2 हो गया. और फिर से 2 से किया तो 2 2 के टेबल में 1 पर आता है. सो लास्ट पार्ट कैन बी रिटन एज 1. नाउ बेटा, you will revise fraction as part of a collection. These are 18 apples. First of all, I will find out half the total of the apples. बेटा इसको कैसे करूंगी? 18 को हाफ मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी, मीन्स 2 14. Beta, now we will revise fractions as part of a collection. Here are some apples. First of all, you will count these apples with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. These are 14 apples. First of all, we will find out half the total of all the apples. For finding this, what will you do? You will divide 14 with 2. बेटा 14 2 के टेबल में कहाँ पर आता है? 7 पर आता है ना. 2 7s are 14 होता है. So half the total of all the apples are 7. Okay. Now we will find out 5 7s the total of all the apples. अब हम 5 7s फाइंड आउट करने के लिए करेंगे. 5 7s फाइंड आउट करने के लिए बेटे क्या करेंगे? 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एप्पल से, मीन्स 14 से. इसको करने के लिए पहले आप 14 को डिवाइड करेंगे 7 से. 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7 के टेबल में 14 कहाँ पर आते हैं बेटे? 2 पर. शाबाश. तो आप 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2. फिर आप क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 5 2 सा कितना होता है? 10. सो 5 7s the total of all the apples is 10. All these sums are clear to you? Okay. Thank you. Have a great day.